In this class, we are going to study about genetic code, and thereafter we'll study about the translation part and also a bit of mutations. So in the previous chapter, in the previous class, we had discussed about the transcription, and that was conversion of DNA to RNA. And in this class we are mainly concerned about translation, that is from RNA to a polypeptide change or a protein. So before that we will have to study how the genetic information or the genetic code is to be read and what exactly led to the formation or discovery of genetic code. So we first have to study what is genetic code, and thereafter we will understand how this genetic code is utilized to translate a mRNA into a protein. So first of all, we have to understand what is genetic code. So this genetic code is a sort of informational relationship between the sequence of bases on the DNA or mRNA. In the previous class we had seen that this mRNA is also called the informational RNA because it is carrying information from DNA. So the mRNA is just a transcripted copy of DNA, and it also has the same information as the DNA, but just one base is changed, that is uracil has been there instead of thymine. So this informational relationship between the mRNA or dRNA bases and the sequence of amino acids, that is, we will see that if on mRNA there is a genetic code like AUG, then it will be translated into methionine, and likewise if there is GUG, it will be translated into valine. So there are such relationships, and those are called genetic code. So this genetic code was very hard to determine, and therefore lots of scientists had to put a lot of effort into it. So we have to study how this genetic code was determined and which were the discoveries that led to the determination of genetic code. So the most important thing here is determination of genetic code. So we have to study about the contribution of various scientists in this case. So a lot of scientists were working in this field, but actually a physicist, not a biologist, first of all hypothesized that what this genetic code could actually be. So his name was George Gamow.
सो ये जो साइंटिस्ट है दैट इज जॉर्ज गैमो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हाइपोथेसाइज किया, इन्होंने अंदाजा लगाया और ही जस्ट गेव अ थ्योरी दैट द जेनेटिक कोड कुड बी अ ट्रिपलेट. Triplet means a group of 3 adjacent nucleotide bases. So what happens there is that on mRNA, generally genetic code is represented in the form of mRNA because cell organelles can read information from mRNA and not DNA. So therefore generally when we talk about genetic code, we will be talking about the sequences on mRNA, not on DNA. So he first hypothesized that a sequence of 3 bases on mRNA could code for one amino acid. That is, for example, AUG could code for something called methionine. A sequence of UUU could be for something called phenylalanine. A sequence of GUG could be a sequence for amino acid valine. So these 3 bases together code for one amino acid. Likewise here. So these are the examples, not the exact determined codons. So we first have to understand the other contributions of the other scientists. So another scientist, very important discovery regarding this was of Crick. So Crick was also a very important scientist. You might have studied earlier in the chapter his contributions. So he observed that in T4 bacteriophage, that is a virus actually. T4 bacteriophage, it could be here. So what happened here is that T4 bacteriophage is a virus and he was studying that. So he observed that when 1 or 2 bases of the DNA were removed or deleted or added extra, so that had a lot of impact on the normal DNA functions of this T4 bacteriophage genome. But when 3 bases, that is 3 adjacent bases were removed or 3 adjacent bases were added, then not many difference or not much significant deviation from the normal function was observed. So he concluded or he hypothesized that when 3 or in multiples of 3 bases are added or removed, that does not have much impact, but if 1 or 2 are removed, that creates a big impact. Then there were also 2 scientists, that is Nirenberg and Mathai. So इन लोगों ने ऐसा कहा, these 2 scientists, that जब अगर 4 DNA के बेसेस हैं और 20 अमीनो एसिड है, तो अगर
एक डीएनए का बेस एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड हो पाएंगे। अगर 2 बेसेस साथ में कोड कर सकते हैं तो ऐसे 16 अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, लेकिन 20 अमीनो एसिड्स हैं। सो दे सेड दैट जेनेटिक कोड कुड बी अ ट्रिपलेट। So they hypothesized that if one base codes for one amino acids, then only 4 amino acids will be coded. सो दिस इज वन थिंग। अगर एक बेस, डीएनए का एक बेस एक अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन रखेगा या उसको कोड करेगा तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड्स का कोडिंग हो पाएगा। अगर हम लोग मानते हैं कि 2 बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं फॉर 1 अमीनो एसिड, देन यहां पर भी ओनली 16 अमीनो एसिड्स विल बी कोडेड। बट अगर 3 बेसेस होते हैं तो यहां पर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं तो यहां पर 64 अमीनो एसिड्स विल बी कोडेड। लेकिन आगे चलकर ये पता चला कि टोटल 61 कोडॉन्स, ऐसे 3 बेसेस का जो एक कोडॉन बनता है तो टोटल 61 बेसेस का 61 कोडॉन्स ही होते हैं, बाकी 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, वो अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्टॉप कोडॉन का काम करते हैं या फिर ट्रांसलेशन को रोकते हैं, वहां से पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस रुक जाता है। तो ये हुआ कि हाइपोथेसिस कि अगर 3 बेस साथ में एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं तो ऐसे 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अभी आगे स्टडी हुई और नीरेनबर्ग ने आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी किया, दैट इज ही सिंथेसाइज्ड homopolymर ऑफ U, A, T and C. So we will study that now. सो नीरेनबर्ग ने होमोपॉलीमर्स सिंथेसाइज किए। तो इन्होंने देखा कि जो A का होमोपॉलीमर होता है दैट इज एडेनिन का, और फिर इन्होंने सिंथेसाइज किया U का, और फिर इन्होंने सिंथेसाइज किया G का, और उसके बाद इन्होंने C का सिंथेसाइज किया।
तो इन्होंने देखा कि इनमें से हर एक होमोपॉलीमर जो था वो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स का पॉली फॉर्म कन्वर्ट कर रहा था। सो जो ए था इसने अलग तरह से ट्रांसलेशन किया एंड इट फॉर्म्ड पॉलीलाइसीन। ये जो यू था इट फॉर्म्ड पॉलीफेनाइलएलेनीन। ये जो जी था इसने फॉर्म किया पॉलीग्लाइसिन। और ये जो सी था इसने फॉर्म किया पॉलीप्रोलीन। सो ये जो ग्लाइसिन वाला पार्ट था जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तब कैपिटल डी का जो होमोपॉलीमर था उसमें ग्लाइसिन फॉर्मेशन नहीं ऑब्जर्व किया गया था। ग्लाइसिन का फॉर्मेशन बाद में पता चला कि जी से होता है। सो ये चारों ऑब्जर्वेशन नीरेनबर्ग ने किया, यानी कि इन्होंने होमोपॉलीमर्स बनाए इसके और उसके बेसिस पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसी चीजें हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं एंड दैट टू फ्रॉम इंडिया, हिज नेम इज हरगोविंद खुराना। सो इन्होंने होमोपॉलीमर सिंथेसाइज किया और इन्होंने हेटेरोपॉलीमर सिंथेसाइज किया। तो इन्होंने जो सिंथेसाइज किया वो कुछ ऐसा था। तो इनका जो हेटेरोपॉलीमर था वो दो तरह का, AUG GUG। ये बाद में देखा गया कि AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन और ये जो GUG है ये एक और अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, दैट इज कॉल्ड वेलिन। और यही चीज रिपीट होते गया यहाँ पर भी। तो इन्होंने हेटेरोपॉलीमर सिंथेसाइज किया। अब इन सारे रिसर्च से ये क्लियर हुआ कि जो जेनेटिक कोड है वो एक ट्रिपलेट होता है। और ये कैसे प्रूव किया गया कि 3 कोड मिलके एक अमीनो एसिड को ही करते हैं। तो ये इन वीवो रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो एसिड और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से पता चला। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है वो हम लोग इसके जस्ट बाद इसी सेक्शन में देखेंगे। और देन वी विल अंडरस्टैंड कि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है वहाँ पर अगर 3 बेस का म्यूटेशन हो जाता है, 3 बेस ऐड या रिमूव होता है तो उससे उतना बाकी के चेन में असर नहीं पड़ता है। बट अगर 1 या 2 होगा तो उसके बाद की पूरी चेन ही बिगड़ जाती है। तो अब हम लोग जेनेटिक कोड का जो डिटर्मिनेशन था वो तो देख चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड।
तो ये जो जेनेटिक कोड था इसका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये होता है एक ट्रिपलेट, यानी कि 3 जेनेटिक कोड में 3 बेसेस साथ में मिलकर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड के इंफॉर्मेशन के लिए मिनिमम 3 जेनेटिक कोड में 3 बेसेस की जरूरत होती है। सो टोटल 64 जो कोडॉन्स है उनमें से एक ये जो कोडॉन है AUG, ये वेरी इंपॉर्टेंट कोडॉन है, क्योंकि कहीं भी अगर प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो ये फर्स्ट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, दैट इज मेथियोनिन। अगर AUG नहीं है तो इसी के बदले एक और कोडॉन होता है जो कि कोड करता है अमीनो एसिड्स के लिए, दैट इज कॉल्ड GUG एंड इट कोड्स फॉर समथिंग कॉल्ड वैलिन। तो जिस तरह कोई भी प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए एक कोडॉन है, तो उसके सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए भी कोई कोडॉन होना चाहिए, और वो कोडॉन होते हैं ये तीनों। These are called stop codons or these are also called nonsense codons. So these don't code for any amino acid. जेनेटिक कोडॉन्स की एक अदर फीचर ये भी है कि एक कोडॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो टोटल 61 फंक्शनल कोडॉन्स है, यानी कि 20 अमीनो एसिड के लिए टोटल 61 फंक्शनल कोडॉन्स है। तो ये तो ऑब्वियस है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे जिनके लिए एक से ज्यादा कोडॉन होगा, लेकिन एक कोडॉन कभी भी एक से ज्यादा अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। आफ्टर दैट एक और प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट। तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा कोडॉन के लिए कोड करते हैं। सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक कोडॉन से कोडेड होते हैं।
only tryptophan and methionine are coded by one codon. तो मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें कम से कम 2 कोडॉन से वो कोडेड होते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इनकी, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस। वो हमने नॉन एम्बिगुअस पढ़ लिया है। वी विल आल्सो हैव टू स्टडी अबाउट कोलिनियरिटी। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है कि जिस सीक्वेंस में डीएनए या मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन्स होंगे उसी सीक्वेंस में हमारे जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स होंगे वो भी होंगे। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोलिनियरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड वॉबल पोजीशन। तो वॉबल पोजीशन में क्या होता है कि जो हमारे डीजेनरेट कोडॉन्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट और सेकंड जो बेसेस होते हैं वही अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर देते हैं, बट जो थर्ड पोजीशन बचता है किसी भी कोडॉन में, जैसे कि ये दोनों हैं, तो इन्हीं दोनों से वो डिसाइड हो जाएगा कि जो कौन सा अमीनो एसिड होगा इन द केस ऑफ डीजेनरेट। तो ये जो थर्ड वाला बेस बचता है दैट इज कॉल्ड वॉबल बेस और दिस इज कॉल्ड वॉबल हाइपोथेसिस एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड वॉबल पोजीशन। बट सिंस ये क्रैश कोर्स का क्लास है तो यहाँ पे हम हर चीज नहीं लिखा सकते, हर चीज नहीं समझा सकते। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वॉबल हाइपोथेसिस। सो दीज वर द कॉमन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। अब इसके बाद की जो टॉपिक है दैट इज म्यूटेशन एंड म्यूटेशन, जो कि जीन म्यूटेशन, टॉटोमेराइजेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। सो यू कैन सी दोज टॉपिक्स फ्रॉम देयर। यहाँ पर हम लोग म्यूटेशंस के कुछ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे और म्यूटेशंस का जो बेसिक क्राइटेरिया और रीजन होता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो म्यूटेशन के बारे में हमने काफ़ी बातें पिछले चैप्टर में ही पढ़ रखी थी। यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे म्यूटेशन से रिलेटेड कि म्यूटेशंस कैसे अराइज हो सकते हैं और कैसे डीएनए में शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो म्यूटेशंस में जो भी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होते हैं हमने वो पिछले चैप्टर में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम लोग जीन या पॉइंट म्यूटेशन के बारे में ही पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स को फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पर। सो इस चैप्टर में हमें सिर्फ जीन या पॉइंट म्यूटेशन पढ़ना है और उनमें कुछ टाइप के म्यूटेशन होते हैं वो देखेंगे हम। पहला है मिससेंस म्यूटेशन।
सो पहले हद से ही हम लोगों ने देख रखा है कि एक कोडॉन में कम से कम 3 बेसेस होते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी एक में अगर चेंज आता है, रिप्लेसमेंट होता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मिससेंस म्यूटेशन। जो दूसरा है वो है नॉनसेंस म्यूटेशन। सो यहां पर क्या होता है कि एक नॉर्मल सा कोडॉन जो कि किसी अमीनो एसिड को कोड करता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक स्टॉप कोडॉन में। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा जो कोडॉन था जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा था, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा एक स्टॉप कोडॉन दैट इज UAA, UAG और UGA में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और टाइप की म्यूटेशन है दैट इज कॉल्ड सेम सेंस म्यूटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जेनेटिक कोडॉन है या जेनेटिक कोड है ये ऐसे ट्रांसफॉर्म करेगा कि नए कोडॉन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो नया वाला कोडॉन होता है वो भी पुराने वाले कोडॉन जो कि अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, ये नया वाला भी उसी को कोड करेगा। तो ये 3 टाइप के बहुत कॉमन म्यूटेशंस अकर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पहले भी पढ़ रखा था जीन और पॉइंट म्यूटेशन। जीन और पॉइंट म्यूटेशन में हमने सबसे पहले देखा था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में 2 चीज हमने देख रखा था, एक था ट्रांजिशन और दूसरा था ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्यूरीन और pyrimidine रिप्लेस ईच अदर। प्यूरीन और pyrimidine रिप्लेस ईच अदर। ये हमने देख रखा था एक्चुअली में ट्रांजिशन में। सो यहां पर प्यूरीन के ही जो 2 बेसेस होते हैं उन्हीं में ट्रांजिशन होता है, दैट इज ए ट्रांजिशन ऑफ अ प्यूरीन बाय अ प्यूरीन। तो प्यूरीन में 2 बेसेस देखा था हमने, वन वाज गुआनिन एंड अदर वाज एडेनिन। सो यहाँ पर हमें वही देखना है। और लाइकवाइज pyrimidine के भी 2 बेसेस होते हैं दैट इज थाइमीन एंड यूरासिल इन द केस ऑफ साइटोसिन एंड थाइमीन इन द केस ऑफ DNA। तो यहाँ पर वही होगा।
और यहाँ पर जो ट्रांसवर्शन होता है, यहाँ पर प्यूरीन एंड पिरिमिडीन रिप्लेस ईच अदर। सो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। जो दूसरा वाला हमने देखा था वो था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यहाँ पर या तो कोई एक्स्ट्रा बेस ऐड हो जाएगा या फिर कोई एक्स्ट्रा बेस, कोई जो बेस किसी जेनेटिक कोडॉन का पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर वी हैड आल्सो स्टडीड अबाउट टॉटोमेराइजेशन। सो टॉटोमेराइजेशन में क्या होता है कि एक नॉर्मल सा बेस किसी एबनॉर्मल बेस में कन्वर्ट कर जाता है। सो यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से या किसी भी केमिकल चेंज की वजह से ज़ैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है गुआनिन, और हाइपोज़ैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है एडेनिन। सो दीज आर एबनॉर्मल बेसिस, दीज आर नॉर्मल बेसिस ऑफ डीएनए विच यू ऑल नो। सो ये हमारे कॉमन टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। एंड आफ्टर दीज म्यूटेशंस वी हैव टू स्टार्ट translation, and that is transformation of the genetic information that is encoded in DNA or mRNA into a protein or a polypeptide chain. So now we will start the main important topic, and that is translation. तो ट्रांसलेशन में बेसिकली क्या होता है कि mRNA में जो इंफॉर्मेशन होता है that is converted into a polypeptide or a protein. सो ट्रांसलेशन में बेसिकली यही होता है कि जो mRNA में इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड में या प्रोटीन में। तो यहाँ पे स्टेप्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो जो सबसे पहला इवेंट होता है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ट्रांसलेशन का ये फर्स्ट स्टेप है। दैट इज ट्रांसलेशन में क्या होगा कि mRNA में जो सीक्वेंस ऑफ बेसेस है, यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स है, उन्हीं सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा और जोड़ के पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाया जाएगा। तो यहाँ पर उन अमीनो एसिड्स को सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। दैट इज दे हैव टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर लोअर एनर्जी स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट so that they could be easily form a bond that is known as a peptide bond. So this happens with the help of enzymes. So this is an amino acid plus there will be an energy source, and that is called ATP
plus enzyme. This enzyme is called amino acyl tRNA synthetase. So ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अमीनो एसिड प्लस AMP एंजाइम प्लस PPI. तो ये जो ट्राईफॉस्फेट था ये बन गया मोनोफॉस्फेट और दो फॉस्फेट ग्रुप बाहर हो गए. तो यहां से अमीनो एसिड्स एक्टिवेट हो गए और ये अमीनो एसिड्स अब सीधा ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले इनको tRNA से जुड़ना होगा. सो जो दूसरा स्टेप है दैट इज चार्जिंग ऑफ tRNA. हमने पिछले क्लास में ही पढ़ रखा था कि tRNA क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है. In the last class we had also discussed about mRNA and rRNA and also the main functions of the transfer or T और soluble RNA. So यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि tRNA से ये कैसे जुड़ेगा. So tRNA के साथ ये रिएक्ट करेगा एंड यहां से सेपरेशन हो जाएगा इनका. तो अब यहां पर ये जो बना यही हमारा वो प्रोडक्ट है जो कि ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा. तो इसी को बोलते हैं चार्ज्ड tRNA और अमीनो एसाइलेटेड tRNA. तो यहाँ पर चार्जिंग ऑफ tRNA के जगह पे we could also have said amino acylation of tRNA because it occurs with the help of the enzyme amino acyl tRNA synthetase. So therefore this is also called amino acylation. अब ये tRNA तो बन गया अमीनो एसिड के साथ जुड़ के अमीनो एसाइल tRNA सिंथेसेट एंजाइम के प्रेजेंस में, बट क्या ये डायरेक्टली खुद से दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ सकता है? तो ये नहीं जुड़ सकता है. अब हमें ये जानना है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो होता कहाँ पे है? तो वो होता है राइबोसोम के अंदर. और राइबोसोम बना होता है दो सब यूनिट से, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट. प्रोकैरियोट में 50+30, यहाँ पर ये 60+40. तो ये दोनों सब यूनिट काफ़ी अलग अलग पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. तो अब हमें देखना है कि ये जो राइबोसोम है उनका क्या रोल होगा अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने में. राइबोसोम के बारे में अभी मैंने बोला कि दो सब यूनिट होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दूसरा. तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में ये जो mRNA है, mRNA जुड़ेगा किससे? तो वो जुड़ेगा 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. और यूकैरियोट्स में यही mRNA जो होगा वो जुड़ेगा 40S सब यूनिट से. अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सबसे पहला जो कोडॉन होता है वो होता है AUG, और AUG कोड करता है मेथियोनिन के लिए.
तो मेथियोनिन हर पॉलीपेप्टाइड के इनिशिएशन के टाइम पे पहला अमीनो एसिड होता है, यानी कि ट्रांसलेशन चाहे किसी भी प्रोटीन का हो रहा हो, सबसे पहला जो अमीनो एसिड होगा वो जुड़ेगा, वो हमेशा इस mRNA के पास आएगा सबसे पहले, क्योंकि जो tRNA होगा उस अमीनो एसिड के लिए वो सबसे पहले आके mRNA और राइबोसोम से जुड़ता है। तो tRNA का जो अमीनो एसिड होता है दैट इज कॉल्ड अ मेथियोनिन। तो ये tRNA मेथियोनिन आके जुड़ता है इसी सब यूनिट से, तो ये जुड़ जाएगा mRNA से और इसके साथ जुड़ा हुआ है 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, 30 और 40S। तो ये 30 और 40S किसका होगा, तो 30S होगा प्रोकैरियोट्स का और ये 40S होगा यूकैरियोट्स का। अब ये जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है ये जुड़ जाएंगे लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से। तो जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैचेस टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो अब इनका फॉर्मेशन हो गया स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट के साथ में। तो अब हमें इनका थोड़ा सा डायग्राम देखना होगा कि कहाँ पर कौन सा सब यूनिट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल सी कि ये जो दूसरे 30S 50 वाले के साथ जुड़ रहा है या 40 वाला 60 के साथ जुड़ रहा है, तो ये क्यों जुड़ेगा और कैसे जुड़ेगा। तो ये जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस यहाँ बहुत जरूरी होता है। तो मैग्नीशियम आयंस का काफी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चाहिए होता है ताकि ये दोनों सब यूनिट जुड़ पाए। इसके बाद हमें देखना है कि ये जो दो सब यूनिट जुड़ा है ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये जो छोटा वाला सब यूनिट है ये या तो 40S होगा या 30S, और ये जो बड़ा वाला सब यूनिट है ये 50S और 60S। यहाँ पर ये जो स्मॉल सब यूनिट है इसी से जुड़ा होता है mRNA। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो mRNA है वो होगा इस पार्ट पर, यहाँ पर इस तरीके से, और mRNA पे ये 5 प्राइम एंड इधर होगा और 3 प्राइम एंड इधर होगा। और यहाँ पे जो सबसे पहला वाला tRNA जुड़ा है दैट इज मेथियोनिन वाला, वो यहाँ पर होगा। और ये जो बेसेस होंगे यहाँ पे सबसे पहला बेस जो होगा वो होगा AUG के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो आएगा वो सबसे पहला वाला होगा इसी tRNA वाला मेथियोनिन।
तो mRNA पे जहाँ पर सबसे पहला वाला होता है दैट इज कॉल्ड AUG, वो स्टार्टिंग कोडॉन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन होगा, तो वो होगा A, U और G, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा tRNA होगा, ये ग्रीन वाला पार्ट tRNA है और ब्लैक वाला पार्ट मेथियोनिन अमीनो एसिड है। तो इसके बाद यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जो पहला सीक्वेंस होगा वो होगा AUG, क्योंकि दैट कोड्स फॉर मेथियोनिन। मेथियोनिन इज द स्टार्टिंग अमीनो एसिड। उसके बाद अब इसके साइट्स के बारे में हमें पढ़ने हैं कि कौन कौन से साइट्स मिलकर ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इनमें बहुत सारे साइट्स होते हैं। सो साइट्स में सबसे पहले हमें जानना है कि जहां पर ये लोकेटेड होता है इसको बोलते हैं P साइट, और ये इसको बोलते हैं A साइट, और ये होता है P साइट। दिस साइट विल बी कॉल्ड एज P साइट। और जहां से ये बाहर आता है दैट इज कॉल्ड E साइट। तो A साइट, P साइट और E साइट की अलग अलग सिग्निफिकेंस है। सो वी हैव टू स्टडी दैट हियर। तो A साइट पे न्यू tRNA न्यू अमीनो एसिड के साथ आते जाएगा। A साइट का नाम होता है अमीनो एसाइल साइट। We will study about how those A site, P site and E site play a role in synthesizing of the polypeptide chain, and we also have to see कि उन A site, P site और E site पर क्या होगा। तो दिस वॉज आवर mRNA पे 5 प्राइम एंड और इधर 3 प्राइम एंड होगा। यहाँ पर बेसेस होंगे, कोडॉन्स होंगे, और इसी के पास आएगा हमारा जो tRNA है, वो अपना अपना अमीनो एसिड को कैच करके लाता है। तो यहाँ पर जो 2 अमीनो एसिड्स होंगे यहाँ पर इस tRNA के पास और इस tRNA के पास, तो उन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का चांसेस होता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स है। इनमें एंजाइम की वजह से क्या हुआ था, एक्टिवेशन हो गया था। तो ये जो पहले से हमने इस पिछले डायग्राम में देखा था कि ये जो पहला वाला अमीनो एसिड था उसके बाद कई अमीनो एसिड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक फरो जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसी फरो में पुराने अमीनो एसिड्स चेन फॉर्म करते जाते हैं। तो जिस तरीके से इन दोनों के बीच में, इन सबों के बीच में बॉन्ड बना है, उसी तरह इनमें भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये जो साइट पर आते हैं इसको कहते हैं A साइट। ये जहाँ पर होता है दैट इज कॉल्ड P साइट, और यहाँ पर होते हैं E साइट दैट इज एग्जिट साइट। एग्जिट साइट से जो tRNA अपना अमीनो एसिड लीव कर चुके हैं, वो वहां से tRNA बाहर निकलते हैं राइबोसोम के अंदर से। सो दिस एग्जिट साइट इज द साइट फॉर लीविंग ऑफ tRNA। तो यहां से tRNA बाहर जाएगा और यहां पर नए tRNA आते जाएंगे A साइट पर।
और इसी तरीके से नए नए अमीनो एसिड्स आते जाएंगे यहाँ पर और फिर ऐसे यहाँ से बाहर जाएंगे। और इस प्रोसेस में जो हमारा राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है वो mRNA पे इस डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या CONH बॉन्ड। विल सी उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हम अभी देखेंगे यहाँ पर। और ये जो सर्कल सर्कल चेन लाइक स्ट्रक्चर है वो पहले वाले अमीनो एसिड है जो कि वो चेन बना चुके हैं। तो जो सबसे पहला वाला होगा वो मिथियोनिन होगा, क्योंकि सबसे पहले tRNA पे मिथियोनिन जुड़ता है, और उसके बाद बाकी अमीनो एसिड आएंगे, इसी तरीके से और tRNA आएंगे और फिर ऐसे वो निकलते जाएंगे। सो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन्हें हमें देखना है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ वील सी कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बनता कैसे है। तो यहां पर इन दोनों से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से -H2O होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ रखे होंगे। तो यहां पर जो CONH है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसी बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या CONH बॉन्ड। ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इस दोनों के बीच में, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। और इसे आप CONH बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पर यही वो बॉन्ड है जो कि यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। और इसी तरीके से नए नए अमीनो एसिड्स आएंगे और वो अपना अपना बॉन्ड फॉर्म करते जाएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव टू स्टडी सर्टेन मोर थिंग्स ओवर हियर। तो ये जो हमारा A साइट है, P साइट है और E साइट है, तो इस साइट को कहते हैं P साइट। तो P साइट जो नाम है वो आया है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज की वजह से। और ये जो एंजाइम है आप लोगों को पता होगा कि जो हमेशा एंजाइम होता है वो नॉर्मली एक प्रोटीन होता है, लेकिन ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज इज एन एक्सेप्शन। ये एक आरएनए एंजाइम है। और ये कौन सा आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है? तो प्रोकैरियोट दैट इज बैक्टीरिया में 23S rRNA और फिर यूकैरियोट्स में ये 28S rRNA काम कर रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ अ एंजाइम। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, दैट इज
तो ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, स्टॉप कोडॉन के बाद में और स्टार्ट कोडॉन के पहले। तो इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, बट ये जो ट्रांसलेशन है इसके एफिशिएंसी को ये इंप्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइबोसोम है ये कब तक एमआरएनए पे राइट डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये तब तक जाएगा जब तक कि ये किसी स्टॉप कोडॉन को एनकाउंटर ना कर ले। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। अब ये सोचने वाली बात थी कि ये जो नया वाला पॉलीपेप्टाइड चेन था ये एक ग्रूव के अंदर क्यों लोकेटेड होता है। तो ये जो नया वाला पॉलीपेप्टाइड है ये एक लीनियर चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर जो भी एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसीलिए ये ग्रूव के अंदर छुपा होता है ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो पाए। तो ये चेन तब तक फॉर्म होगा जब तक ये जो यहाँ पर कोई एक कोडॉन जो कि एक स्टॉप कोडॉन ना आ जाए, और जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो ये ट्रांसलेशन रुक जाएगा और ये जो चेन है वो राइबोसोम से बाहर आ जाएगा, एंड दैट विल कंप्लीट द ट्रांसलेशन ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन में ये होते जाता है, और ट्रांसलेशन के स्टार्ट होने के लिए AUG चाहिए और ट्रांसलेशन के स्टॉप होने के लिए UAA या UAG या UGA का कोडॉन चाहिए होता है। तो दिस इज हाउ ट्रांसलेशन अकर्स।